तो आज मैं जो बांटना चाहता हूँ आइज़ाया का किताब 40वां अध्याय या 31 का वचन से। Today what I am going to share is from Yeshaya chapter 40 verse 31. तो यहाँ पर लिखा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। And here it is mentioned that yet those who wait for the Lord will gain new strength. और वे उकाबों की तरह समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और न श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. जो कोई परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। And through this verse, the Lord has taught me that those who wait upon the Lord will continue to receive new strength from the Lord. ये ऐसा है कि जैसे कि जब हम प्रभु की बाट जोते हैं हम सोचेंगे कि मेरे पास कुछ बल है और मेरा जो बल है उस बल को जोड़कर प्रभु और मुझे जोड़ेंगे उसकी बल। ऐसा नहीं है कि जब मैं पूरी तरह मेरी बल में हार मांगूंगा तो प्रभु उसकी बल से मुझे भरेगा। So what I concluded from this verse was it is not like that I already have some strength and God will add his strength to my strength, but it is like that if when I go tired of my own self and my own strength, that time God will put his strength into me. या नया करार में एक वचन में लिखा है कि एक अंधा एक दूसरी अंधा को राह नहीं दिखा सकता है, बल्कि वो दोनों खड्डे में गिर जाएंगे। It is mentioned in the Bible that a blind man cannot show the way to another blind man. Like this way, they both will fall into the pit. उसी तरह जब हम कमजोर बनते हैं और एक कमजोर के पास जाकर हम बल नहीं पाएंगे, हमको बल पाने के लिए एक बलवंत व्यक्ति चाहिए। So in the same way, if when we are weak and we go to a weak person, we will not receive strength. If we want to receive strength, then we have to go to a person who is strong. यहाँ 21 का वचन में लिखा है कि जो कोई यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उसका कारण बताया गया है कि 28 बी में लिखा गया है। So it is mentioned in verse 31 that those who wait for the Lord will gain new strength, and the reason for the same is mentioned in verse 28 B part. मैं आपको उस वचन पढ़ना चाहता हूँ 28 बी पार्ट। अगर आपके पास बाइबल खुला है सभी पढ़े इस वचन को। यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भरकर सृजनहार, वह ना तकता ना श्रमित होता है। So I want to read from this verse, and if you all have your Bible, you also please read this verse. The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not become weary or tired. या जैसे कि मैंने कहा कि एक अंधा एक दूसरी अंधा को राह नहीं दिखा सकता है, लेकिन उल्टा वो दोनों खड्डे में गिर जाएंगे। उसी तरह अगर हमारा परमेश्वर अथके है या हमारे परमेश्वर के पास कोई बल नहीं है तो हम उसके पास जाकर कुछ नहीं पा सकते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं कि जो यहोवा के बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है, वो बल है। So as I mentioned that a blind man cannot show the way to another blind man. In this way, both of them will fall into the pit. But and likewise, if you are tired and weak, and you go to a person who himself is weak, then you will not be able to receive strength. But in the contrast, if we wait on the Lord and go to the Lord, then we'll receive strength. जिनी करार में बहुत सारे लोग हो जो परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोड़ने वाला लोग थे, उसमें से डेविड एक है।
in the Old Testament, there are so many characters who waited upon the Lord, and one of those is King David. आइए हम भजन संहिता 92 वर्स 12 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 92 वर्स 12। So we'll read from Psalms 92 verse 12. So Psalms 92 verse 13 we read, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courtyards of our God. वर्स 14 में लिखा है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। And it is mentioned in verse 14, they will still yield fruit in advanced age. They will be full of sap and very green. यहाँ पर लिखा है कि यह जो कोई प्रभु की बाट जोते हैं वो इस तरह लिखा है कि वो ऊपर होने पर भी वो कभी थकेंगे नहीं, लेकिन हमेशा वो फलवाते रहेंगे। So it is mentioned in these verses in verse 14 that the people who wait upon the Lord, even though if they are advanced in age, they will still continue to yield fruit. हमेशा फलवंत होते जाएंगे और एज होने के बावजूद भी वो लोग लहलहाते रहेंगे। So here it is mentioned that they will still yield fruit, and even though if they get advanced in ages, they will still be very green. तो बाइबल हमें प्रोत्साहन करती है कि हम हमेशा प्रभु की बाट जोने वाला होना चाहिए, क्योंकि इस संसार इतना पाप से भरी है, तो इसके ऊपर विजय पाने के लिए हम प्रभु की बल और प्रभु की सामर्थ्य की जरूरत है। The Bible always encourages us that we should be people who keep on waiting on the Lord, because the world is full of people full of sin, and we should be to overcome this. We should be people who keep on waiting on the Lord. मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। मैं एक बार एक भिखारी को देखा मैंने। I want to tell you an incident that one day I saw a beggar. और उस भिखारी एक घर के अंदर गया भीख मांगने के लिए। And that beggar went inside a house to beg. और उसको वो जो कुछ वो घर के मालिक से जो कुछ मिला, वो मिलने के बाद वो घर से बाहर आ रहा था। And whatever he received from the owner of that house, after receiving that, he was coming out of that house. जैसे कि इसकी मालिक की जो गेट के बाहर आ रहा था, उसके सामने और एक भीख मांगने वाला आया। And at the time when he was coming back, another beggar came in his way. And उसने सोचा कि जो घर की मालिक है अभी घर से बाहर निकल रहा है, तो यही मालिक होगा करके उससे वो भीख मांग रहा था। And that another beggar thought that this person is coming out from the house, and this may be the owner of that house. तो उसको भीख मांगने लगा। And that time he started to beg from this first beggar. और पहले जो भीख मांगने वाला वो कहते हैं कि मैं भी एक भीख मांगने वाला हूँ, आप मुझसे किस तरह भीख मांग सकते हैं। And when that the second beggar asked for started to beg from that first beggar, the first beggar told him that I myself is a person who is a beggar, and how can you ask something from me? तो अगर मुझे कुछ मेरे हाथ में कुछ चाहिए तो मुझे घर की मालिक के पास जाना है, और मेरा मालिक है पिता यीशु, उसके पास जाना है, क्योंकि जब मैं मांगूंगा वो कुछ मुझे देगा। And suppose I do not have something, so I should go to the owner of the house, who is Jesus, and if I ask him, then I will receive. और एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि प्रेरित पौलुस इफिसियों की किताब 18 में बताता है। One more verse I want to tell you is from New Testament. Apostle Paul tells in the book of Ephesians. 18 chapter 1 18 से 21 तक। Ephesians chapter 1 from verse 18 to 20. 18 to 20. Yeah. यहाँ पौलुस
पौलुस की एक प्रार्थना के बारे में हम सीख सकते हैं कि पौलुस के अंदर एक दिलचस्पी प्रार्थना है विश्वासी लोगों के लिए। And we can see regarding a prayer which Apostle Paul has for the people of this world. या पौलुस प्रार्थना करता है कि आपकी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी आंख या आपकी जो हृदय की आंख ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि जो प्रभु ने आपके लिए बुलाहट रखा है उस आशा के बारे में जाने। So here we see that Apostle Paul is saying that I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling. और पौलुस की और एक प्रार्थना है कि जब प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों के लिए जो दंड भर दिया और हमें अपने पवित्र लहू लेकर खरीदा है, इसके बाद जो कोई विश्वासी लोग इसकी वारिस बन जाता है, इसके बारे में जानकारी के लिए पौलुस प्रार्थना करते हैं। Another prayer of Apostle Paul is that Jesus has taken the punishment of all our sins and has laid himself for the people of this world, and to know the fact, to know this truth, the Paul is praying for the people to know this truth. पौलुस की तीसरी प्रार्थना है कि जिन्होंने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया और वही सामर्थ्य जो परमेश्वर के अंदर है आज आप और मुझ में जो काम कर रहे हैं। And the third prayer of Apostle Paul is the God who raised Jesus from who resurrected Jesus, the same God and the same power is working in us. Yes, brothers, आज इस संसार में हमको वही पावर, वही सामर्थ्य चाहिए जिन्होंने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही पिता हमको दे सकता है। The same power, the God gave us, God can give us the same power which through which power He raised Jesus from dead. मेरे जीवन का एक छोटी उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब मैं 17 साल का मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया हूँ। I want to tell you an example from my life when I was 17 years and I accepted Jesus as my savior. आज मैं 40 वर्ष के करीब हूँ। इतने साल जो मैं भागदौड़ किया हूँ, आज मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूँ मेरे अंदर क्या कमी है। And now I am 40 years old, and so many years I was running here and there, and now I can see what is the shortcoming in me. तो प्रभु ने मुझे बताया कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर बाहर चूहना वो काम नहीं किया, क्योंकि प्रभु उधर आपको बहुत सामर्थ्य और बल देना चाहते हैं। So now I can say that the Lord wants to tell me that you have not waited upon the Lord, and you have not received, so that you will receive the power which He can give. या जैसे कि ऐसे में लिखा है कि जवान लोग थक जाएंगे। जैसे कि मैं इतना दौड़ा हूँ प्रभु की सेवा करने के लिए, इच्छा रखते हुए, दिलचस्पी रखते इतना दौड़ा हूँ, लेकिन जो करना था वो नहीं किया कि मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठकर इसकी बल पाने की जरूरत थी। And I have so much I have done to serve the Lord. I have ran here and there, but the thing that was important, to wait upon the Lord to receive that strength from Him, I have not done that part. या और एक चीज जो प्रभु यीशु नया करार में इतना सामर्थ्य कैसा बन गया, मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि जॉन 17:10 में लिखा गया है। I want to tell you this from the New Testament, from John 17 verse 10. यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु पिता से इस तरह से बातचीत कर रहा है, जो मेरा है वो सब तेरा है। I want to show that verse that Jesus is telling that, and all things that are mine are yours. क्या प्रभु यीशु पिता से इस तरह से बात कर रहा है कि प्रभु आपने मुझे आंखें दिया वो आपका है, प्रभु मुझे पैर दिया वो आपका है, प्रभु आपने मुझे हाथ दिया वो सब आपका है, मुझे बल दिया वो सब आपका है।
प्रभु इस तरह से पिता से बात कर रहे हैं। अभी पिता एक आज्ञा सुनकर प्रभु पिता क्या बोल रहे हैं सुनेंगे। So Jesus is telling here to God that whatever he has is all God's, like his eyes are given by God and they are for God. And now we'll see that what God is saying. Correct, brother? तो पिता इस तरह से बात कर, ठीक है। Yeah. अभी पिता प्रभु यीशु से इस तरह से बात कर रहे हैं कि ठीक है, जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है। तो अभी देखो, अभी जो कुछ मेरा है वो आपका होगा। And then the Father is talking to Jesus like this way, that whatever is yours, it is mine. It has been given by me. So whatever is mine will be yours. यानी आज यीशु स्वर्गीय सिंहासन पर पिता के साथ शयनवर बैठा है। इसका मतलब है कि वो धरती पर जितने साल था, इसलिए यही सोचे कि पिता मेरा दिल नहीं है, आपका दिल, मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा में पूरा करना चाहता हूँ। So now Jesus is sitting at the right hand of God, and the time when he was on this earth, that time he was always doing the will of his Father. He was always saying that not my will but your will be done. ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, हमें प्रभु की बाट जोड़ने की जरूरत है। आप सेवा करना चाहेंगे या प्रभु की कुछ काम करना चाहेंगे, आपके सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति में बैठकर इससे बल प्राप्त करना है। So brothers and sisters, I want to tell you the fact that now in this present time we need to be the need of the hour is that we should sit in the presence of the Lord and wait upon the Lord. If you want to serve him, you want to do something for him, you should first sit in his presence and wait upon him. ये मेरी बात नहीं है, जो मैं ये पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है वो आपको प्रतिज्ञा कर रहे थे, मैं आपको नया बल देते जाऊंगा। And the Father who is the creator and the owner, the creator of this world, is saying that I will give you the power that you need. आपको कोई इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई कलीसिया में आपको सामर्थ्य नहीं, लेकिन आपको पिता के पास जो हमारे यीशु मसीह के पास जाना है, तो सामर्थ्य रूप से देने के लिए वो प्रतिज्ञा किया है। So you do not need to go to any person in this world, to any elder in the church or anybody else. You need to go to the Father in heaven, who is always ready to give whatever we ask for. प्रभु की स्तुति हो। Thank you. I want to praise the Lord. Thank God for the word that we heard today. प्रभु की महिमा हो, जो वचन हमने आज सुना उसके लिए। That's very true. As the word of God said in Isaiah 40, verse 31, that those who wait for the Lord will gain new strength, and they will mount up with wings like eagles. They will run and not be tired. They will walk and not become weary. ये जो वचन है वो सच है, जो यशाया 40 के 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। Jesus said to some of the people, Jews, you're not willing to come to me. यीशु मसीह ने कुछ यहूदियों से ऐसे कहा कि तुम जो है मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं हो। See, when we are in some difficulty and some problem, we think of all other things and not coming to the Lord, we will remain in our problem. जब भी हम किसी मुसीबत से गुजरते हैं तो हम प्रभु के पास जाने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन और सब जगह हम भागते हैं। So, coming to God, our Heavenly Father, and just submitting ourselves before Him is the best thing that we can do. हमारे पिता के पास आकर जब हम
अपने आप को उनके अधीन कर देंगे तो वही हमारे लिए सबसे अच्छा मार्ग है। The life of Jesus is a great example for us that he who walked so closely in fellowship with the Lord still spent so much time with the Father. प्रभु यीशु हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे उदाहरण है इसके लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के इतने निकट थे फिर भी वो परमेश्वर के साथ बहुत समय बिताते थे। I've read and heard from men of God that the only secret of strength in the Lord is spending time with God. और मैंने भी बहुत सारे ऐसे प्रभु के दासों से सुना है कि शक्ति या बल पाने का एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर के साथ समय बिताना। So I found in some measure that spending time with God is the strength of my life. तो कुछ हद तक मैंने भी ये पाया है कि मेरे भी जीवन में शक्ति पाने का एक ही मार्ग है, वो है परमेश्वर का बांट जोतना। And in a way, it's very simple that we just go to the Lord. Especially if it's at the start of the day, it will be a very good thing. और एक बहुत ही मामूली बात है कि हम रोज सुबह कुछ भी शुरू करने से पहले हम प्रभु के साथ समय बिताएं। And we go and spend some time with Him and in fellowship with the Lord. हम परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताएं। It is not that we keep on praying so many things. We keep on speaking, but we wait for Him to speak to us also. और यही बात नहीं कि हम ही वार्तालाप करते रहें प्रभु के साथ, लेकिन हमें सुनने की भी आवश्यकता है। So we just go before Him and say, Lord, I just want to spend time with you. You speak to me. और हमें परमेश्वर के सामने जाकर कहना चाहिए, प्रभु मैं आपके साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। And the Bible says God is light, and when we come before Him, we are totally exposed by that light. और वचन कहता है कि प्रभु जो है वो प्रकाश है, तो जब हम उनके सामने जाएंगे तो जो भी हमारे अंदर छिपा हुआ है वो सब प्रकाश में बाहर निकलेगा। So when we stand before Him and say, Lord, your light exposes me totally, that's the best place to be in. और जब हम परमेश्वर के पास जाकर कहें कि प्रभु आपका जो प्रकाश है वो जो भी मेरे अंदर है उसे दिखाता है बाहर, वही एक बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए। Then we are walking in the light. तब हम परमेश्वर के प्रकाश में चल रहे हैं। And what we know about ourselves, the Lord already knows, and then we have fellowship with the Father. जो हमारे बारे में हम जानते हैं वो प्रभु पहले से ही जानता है, और परमेश्वर के साथ हमें एक संगति करने का मौका मिलता है। But if we keep something hidden, God knows it, but if we try to keep something hidden, then we will not have fellowship with the Father. प्रभु तो जानता है हमारे अंदर क्या है, लेकिन अगर हम उसको छिपाए रखेंगे तो हम परमेश्वर के साथ पूरी तरह संगति नहीं कर पाएंगे। So the wonderful privilege that each one of us have is to walk in the light even as He is in the light. तो एक बहुत ही अच्छा जो अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है वो है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। Then we will have fellowship with the Father and with all the others who walk in the light. तो फिर हमें जो पिता परमेश्वर के साथ संगति मिलेगा, और जो भी लोग हैं जो प्रभु के साथ इस रूप में चलते हैं उनके साथ भी हमारा संगति बनाए रहेगा। Then the fruit of the Spirit comes into our life, the love, all the 9 fruit of the Spirit comes into our life. और तब वो जो 9 फल है पवित्र आत्मा के, वो भी हमारे जीवन में जीवन का एक भाग बन जाएगा। But Joseph was saying that there are time in his life where he was struggling with other things, but with God, today is the day. From today onwards, it can become better for us.
जैसे ब्रदर जोसेफ ने कहा कि पहले कैसे वो बहुत ही अन्य बातों से वो जूझ रहे थे, लेकिन आज जैसे प्रभु के वचन में कहा है कि आज जो उद्धार का दिन है, तो आज से हम जो प्रभु के साथ ऐसी संगति का शुरू कर सकते हैं। That's what the word of God says in Philippians chapter 3. फिलिपियों का 3रा अध्याय, It says in verse 12, फिलिपियों 3 का 12, verse 12 and 13, not that I have already obtained it or already become perfect, but I press on in order that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead, I press on toward the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. फिलिपियों 3 का 12 और 13, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। The wonderful thing about our God is He doesn't keep a record of our failures and our past. प्रभु की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो हमारे पिछले दिनों के जो हम जिस क्षेत्र में हार गए हैं उसका प्रभु अपने मन में वो उसका गिनती नहीं रखते हैं। So from today onwards we can press on and we can fulfill God's plan for our life. और आज से हम जो निशाना है उसकी ओर हम दौड़े चले जाएं और उसे पाने का पूरा कोशिश करें। The Bible says about God that He will give back the years which the cankerworms have eaten. परमेश्वर के वचन ने कहा है कि जो हमारे खोए हुए दिन हैं उन्हें प्रभु वापस दे सकता है। What a wonderful God we have. कितना ही एक अद्भुत परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। May we all have fellowship with Him and gain new strength. हम सब प्रभु के साथ संगति में रहें ताकि हम जो सामर्थ्य है उसे प्रभु से पा सकें। Amen. Amen. So I was just looking at the verse in Isaiah 40 and verse 31. So it is compared with eagle. और जब मैं यशायाह अध्याय 40 के वचन 31 को देख रहा था तो वहां पर इस वचन की तुलना उकाब से की गई है। So they will mount up with wings like eagles. और वचन कहता है, Yeah. Yeah, brother, you continue. Yes. In other words, they will soar up like eagles. They will soar up as eagles. और यहाँ पर लिखा है कि वे उकाब के समान उड़ेंगे। So I was looking at, I mean, not only this verse, there are several verses in the Bible where eagle was quoted. और केवल यही एकमात्र वचन नहीं, बाइबल में कई सारे जगह पर वचन में उकाब का जिक्र किया गया और उकाब से तुलना की गई है। So sometimes it's wonderful to think about the nature and especially the examples given in the Bible. तो हमारे लिए कई बार अच्छा है कि हम रुक कर वचन में देखें कि परमेश्वर का वचन प्रकृति के किन बातों को लेकर उदाहरण देता है। You know, somewhere it's compared with ants. और वचन में एक जगह पर वचन चींटियों के साथ में तुलना करता है। And somewhere it's also mentioned, be wise like serpents and innocent like doves. और वचन में एक और जगह कहा गया है कि सर्प के समान चतुर चालाक बनो परंतु कबूतर के समान भोले बनो।
Brother, you are on mute. Yeah. So I was looking at what are the unique attributes of eagles. तो मैं कुछ विशेष गुणवत्ता की बातों को जो उकाब के विषय में है उन बातों की ओर मैं देख रहा था. So there are several wonderful qualities of eagles. तो कई सारे विशेष बातें हैं उकाब पक्षी के विषय में. So one, they have a very sharp eyesight. और सबसे मुख्य उनकी जो बात है वह उनकी आंखों में है कि वह उनकी नजर बहुत ही तेज होती है. And second, they fly very high. और दूसरा कि वो बहुत ही आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हैं. I'm not sure how many of you noticed flying eagle flying, but they don't flap their wings much. और मैं नहीं जानता कि आप में से कितनों ने उकाब पक्षी को आकाश में उड़ते हुए देखा है, लेकिन वो जब उड़ते हैं तब अपने पंखों को ज्यादा फड़फड़ाते नहीं हैं. So it spreads its wings. It spreads its wings. That's why it's called it. It soars up high in the sky. और वह इस रीति से आकाश में उड़ते हैं जैसे कि मानो वो तैर रहे हैं. वो अपने पंखों को केवल फैलाकर आकाश में रहते हैं और वो ऐसे लगता है जैसे तैर रहे हैं और ऊंचाई पर उड़ते हैं. So the eagles wait for the wind currents. During storm, the heavy winds, right? The eagle uses those wind currents to fly above. They will just spread their wings by the force of the wind currents. They fly above. और विशेष करके जब आंधी और तूफान चलता है और तेज हवाएं चलती है तब इस तेज हवा का इस्तेमाल वो उकाब पक्षी ऊंचाई पर उड़ने के लिए करते हैं. वो अपने पंखों को केवल खोल देते हैं और हवा के बहाव में वो ऊंचाई पर उड़ते हैं. So we can compare. So instead of now flapping their own wings on their own strength, they depend on the power of wind. तो हम यहाँ पर यह पाते हैं कि वह जो उकाब का पक्षी है वह आकाश में उड़ने के लिए अपने पंखों को ज्यादा फड़फड़ाकर अपनी शक्ति और कोशिश नहीं करते हैं. केवल वह हवा जो तेज हवा बहती है उसकी सामर्थ पर अपने पंखों को खोल देते हैं और ऊंचाई पर उड़ते हैं. So we can compare the power of wind is like the power of Holy Spirit for us. और जैसे हम इसकी उस तेज चलने वाली हवा की तुलना परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से कर सकते हैं. So it indicates in the word that when we wait upon the Lord, we will gain strength. That means that God will strengthen us through His Holy Spirit to fly above. और जैसे कि हम यह वचन पढ़ रहे हैं कि जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे. इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सहारे पर वह हमें शक्ति देंगे कि हम उनकी सामर्थ से हम चलें. So all we have to do is to just spread our wings. That means just trust in the Lord, have faith, and trust in His promises. तो हमें केवल अपने पंखों को परमेश्वर की सामर्थ पर खोलने की फैलाने की जरूरत है. उसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर पर और उसके वायदों पर प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है. In Zechariah 4:6 it says, "Not by my might, not by power, but by my Spirit," says the Lord. और ब्रदर which was Zechariah 4:6. और जकरिया 4:6 ऐसे कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा. Yeah, that's what it was coming to my mind. The God has created the nature so wonderfully that we can gain so many learnings from the things around us. परमेश्वर ने हमारे सीखने के लिए कई सारे उदाहरण इस प्रकृति में रखे हैं कि हम उनकी बातों को देखकर उदाहरण से हम सीख ले सकें. When I was looking at 1 Kings 18 verse 46, chapter 18 verse 46, where it states that the power of the Lord came on Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. So this was after killing all the prophets of Baal, that Elijah ran with the horses chariot of Ahab. Brother, which book it was that? Which was? It's 1 Kings, Raja Bali ka pustak, 1 Kings 18, chapter 18, verse 46. पहला राजा अध्याय 18 उसका 46वां वचन हम देखते हैं. तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया.
and he was running with a chariot, and Ahab was surprised and asked later that how it is possible, and he said, I can do all things through him. And same thing we can see also the Philippians chapter 4 verse 13, where Paul states that I can do all things, or I can do all things through him who gives me strength. और हम वचन में देखते हैं कि यहाँ पर जो एलिया है वह रथ के साथ तेज तेज गति से दौड़ रहा था, और वह राजा चकित था कि वह कैसे यह संभव है कि यह व्यक्ति एक इंसान एक रथ के साथ में दौड़ लगा रहा है। और ऐसे हम इफिसियों के पत्री में भी हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Yeah, many a time in our life also we just become very strengthless, weak, and we think, what can I do? But I have seen in my life that Lord then lifts us up, and He renews our strength, and when we are really weak, He is strong in us, and He can give us strength to do new things for Him. और कई बार हम अपने विषय में भी अपने आप को देखते हैं, एक परिस्थिति में पाते हैं कि हम निर्बल हो चुके हैं, अब हम में कोई सामर्थ्य नहीं बची है, लेकिन यही वह समय होता है जहाँ पर परमेश्वर कार्य करते हैं और परमेश्वर हमें शक्ति देते हैं नया कार्य करने के लिए। Praise be to His name. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। What we heard is waiting upon the Lord. और जो हमने सुना वह यह कि हम परमेश्वर की बात जो है, There's a verse in Luke 24:49. और लूका 24 के 49 में एक वचन है। Jesus is talking about what's going to happen after he goes. और यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया है कि उनके चले जाने के बाद में उनके पीछे क्या होगा। That is Luke 24:49. I am going to send you what my Father has promised, but stay in city until you have been clothed with the power from on high. लूका अध्याय 24 के वचन 49 में हम देखते हैं, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Jesus had given the disciples a great commission to go to the end of the earth, end of the world, and preach gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. और यीशु मसीह ने जब इस धरती को वो छोड़ रहे थे उससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी आज्ञा और जिम्मेदारी चेलों को सौंपी, और उन्होंने आज्ञा देकर कहा कि जाकर जगत में सुसमाचार प्रचार करो और सभी को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। But then he told them to wait till they receive power. यह आज्ञा देने के बाद में यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम पहले ठहरना और रुक जाना, जब तक तुम्हें सामर्थ्य न दिया जाए तुम आगे न बढ़ना। So he is not telling them to immediately go, but wait. वो उनसे कहता है कि तुम जाकर प्रचार करना, लेकिन वो उनसे कहता है कि तुम ठहरना। But they waited for 50 days after his death. That is, it happened on the day of Pentecost, as mentioned in Acts 1:8. और जैसा कि हम प्रेरितों के कार्य के अध्याय पहले में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों ने लगभग 50 दिन तक इंतजार किया। It's very important for us to see the waiting is a part of God's plan for our life. और हम देखते हैं कि इंतजार करना परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। So if you act too quickly, you may do without the power of God. You may work on your own strength. और यदि आप कुछ बातों को जल्दबाजी से करने की कोशिश करेंगे तो वह आप परमेश्वर की सामर्थ पर नहीं कर रहे, वह आप अपनी शक्ति पर कर रहे हैं। So that's what in our life also we do a lot of things on our own strength because we don't have the patience to wait for God. और कई ऐसी बातें हमारे जीवन में है जिन्हें हम अपनी शक्ति और दम पर हम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर धीरज नहीं कि हम परमेश्वर की बात जोड़ सकें। Waiting is one of the divine qualities. It is actually it's actually a part of partaking of the divine nature of Christ. और धीरज धरकर इंतजार करना भी यह परमेश्वर का एक ईश्वरीय स्वभाव का गुण है, और जब आप धीरज धरते इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के इस ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होते हैं। Because Jesus said that my time has not come. He waited for God's time to happen.
और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय अभी तक नहीं आया। उन्होंने परमेश्वर पिता का इंतजार किया। So you can see the life of Jesus. He was always waiting. He was operating on a timetable. He waited for God's timing and then he operated. He never moved 1 minute before that, even a second before that. और हम एक समय सारणी को देखते हैं जो यीशु मसीह ने अपने जीवन भर उसका पालन किया। वो परमेश्वर पर निर्भर रहकर उनकी बाट जोते थे और उनके बताने के अनुसार वो अपने समय पर वो बातों को करते That थे। was the secret of Jesus' life. That is when we partake of his divine nature, we should have a nature of always waiting upon the Lord. और यही यीशु मसीह के जीवन का रहस्य है कि जब कभी हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, यदि हम उनकी बाट जोते हैं, तो यह इस बात की ओर संकेत है कि हम परमेश्वर के उस स्वभाव में सहभागी होते हैं। One verse which always encouraged me is, He makes all things beautiful in His time. एक वचन है जो मुझे हर बार उत्साहित करता है हमेशा, वह यह कि वह सारी बातों को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाते हैं अपने समय पर। We want everything to be beautiful all the time, so we don't want to wait for anybody. और हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो कुछ भी बातें हैं वह हमेशा खूबसूरत हो, हर समय वह खूबसूरत रहे, लेकिन हम धीरज धरना नहीं चाहते, इंतजार किसी के लिए नहीं करना चाहते। So when something happens in our life, some you do something in your house or whatever it is, but if you God actually makes he makes all things beautiful, but we should not be impatient into get into do what God is supposed to do and make things beautiful. और कई बार हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है, हमारे परिवार घरों में कुछ बातें हो या कोई भी विषय हो, जब कभी हमारे जीवन में कुछ होता है, हम परमेश्वर उस बातों में एक बहुत अच्छी उस बातों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर उतना धीरज नहीं कि हम परमेश्वर का इंतजार करें कि परमेश्वर उस काम को करे। We are impatient because we don't want to we will think what the people will think. We are worried about the opinion of men, so we want everything to be all right all the time, but God has a time for everything. और हमारे अंदर हम बातों को लेकर धीरज नहीं धर पाते, कारण यह है कि हम सोचते हैं समाज क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यह सारी चिंता हमें सताती है, जिसके कारण हम परमेश्वर का बात नहीं जोना चाहते और हम चाहते हैं कि सारी बातें सुंदर हो, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर उन सारी बातों को करते हैं। The Saul was doing a sacrifice and he was supposed to wait for Samuel to come. और हम जैसा जानते हैं वचन में लिखा है कि शाऊल परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने गया और उसकी जिम्मेदारी थी कि वह शमूएल का इंतजार करे। He could not wait for Samuel. Samuel delayed. That was a God ordained delay, but he could not wait for Samuel to come. And meanwhile, things were becoming bad. The enemies were coming to attack him, but he was so much in a hurry that he did sacrifice of his own. और हम देखते हैं कि शमूएल को वहां पर आने में देरी हो जाती है और उसका देरी से आना यह परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ था। और हम देखते हैं कि शाऊल राजा शमूएल का इंतजार नहीं कर पाते और दूसरी ओर शत्रु राजा आक्रमण करने की तैयारी में रहता है और वो जल्दबाजी में स्वयं राजा शाऊल ही बलिदान चढ़ा देता है। So that was a great mistake he made. He was in a hurry to make things beautiful, things all right, before God's timing. और हम देखते हैं कि शाऊल जो राजा था वह बातों को जल्दबाजी में कर अपनी रीति से करके उसे सुंदर बनाना चाहता था और वह परमेश्वर का इंतजार नहीं करना चाहता था। So as we read in Isaiah, what happens to the people who wait? But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run, but they will not be weary. They will walk, but they will not faint. This is what happens to those who wait. They will be always walking, but they will not faint. They will not be tired of walking. They will run, but they will never grow weary. But when we do in the strength of the Lord, you will never weary. You will continue to do it. That is why we should wait for the strength of the Lord. लेकिन जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं और रुककर उनका इंतजार करते हैं, उनके साथ क्या होगा? यही वचन हम यशायाह के 40 के 31 में पढ़ते हैं कि जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। और जब आप परमेश्वर की शक्ति पर करने की कोशिश करेंगे, उसकी बाट जोएंगे, तब परमेश्वर आपको बल देंगे। I was reading a history behind this. Those days, these days when this was written, when people go for war, they have a particular troop which is using eagle for running. Brother, can you repeat? In those days, the context of this verse is in those days when the kings go for war, there is a particular
part of the army which uses the eagle for running. और जब मैं इस वचन को लेकर इतिहास में मैं कुछ जांच कर रहा था और वचन को खोज रहा था, तब मैंने पाया कि उन दिनों में जब राजा युद्ध के लिए तैयारी करते थे, युद्ध के लिए जाते थे, तो उनकी जो सेना की एक झुंड होता था, उसमें वो उकाब के पक्षी का इस्तेमाल करते थे। Like today we have cavalry, today we have people who go for fight on the horses. Those days people used to use eagle. How they do is they will tie a rope to the leg of the eagle and they hold on to the rope, and as the eagle flies, they will run. और जैसे कि हम देखते हैं कि युद्ध में हम देखते हैं कि सैनिकों के पास में घोड़े दिए जाते थे और वे घोड़ों से लड़ते थे, लेकिन उस समय में जहां पर हम ये वचन पर उन दिनों में वे उकाब के पक्षी का इस्तेमाल करते थे और उसके पैर में एक धागा बांध देते और उसे अपने हाथों में पकड़ कर रखते, और जैसे उकाब का पक्षी आकाश में उड़ता, वे सैनिक जो है वो दौड़ लगाना शुरू करते। So the eagle carries almost 80% of their weight, so they can run very fast and not be weary. Their one step will be equal to 10 steps of ours. So they will keep on running and without becoming weary. That is how these eagles help them to run. और जो उकाब के पक्षी तो वही इस रीति से उड़ते हैं कि हमारे 10 कदम उनका एक बार उड़ान भरने के समान हो जाता है, और वह 80% तक का वजन हमारे शरीर का झेल लेते हैं, और इस रीति से वो उड़ते थे। So Isaiah was referring to this when he wrote this. Those who wait upon the Lord, they can really do what God wants to them, but without becoming weary. Today the problem with us is we do a lot of things, but we become weary, we become worried. That irritates us. We feel like going back. But those who wait upon the Lord, God has a timing. Let us operate according to the timing of the Lord, exactly like Jesus Christ did. और यही यशायाह भविष्यवक्ता ने उस पक्षी को देखकर वचन में कहा कि जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे श्रमित न होंगे। और कई बार हमारे साथ यही समस्या हो जाती है कि हम बहुत श्रमित होते हैं और कई सारे विषयों को लेकर चिंता करते हैं, डरते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर की बाट जाएंगे तो वह हमें शक्ति और सामर्थ देंगे, और यीशु मसीह के जीवन में सारी बातें समय पर हुई वैसे हमारे जीवन में होंगी। Why should we wait? Because strength comes only from God. There's only one source for strength, that is God. So if you don't wait, you will work without strength. But if you wait for God, you will have the tremendous strength from God. It says about, talks about God as a well that cannot be drained. It's always a continual source of strength for us. और आपको परमेश्वर की बात क्यों जोड़नी, परमेश्वर का इंतजार क्यों करना? यदि आप सामर्थ पाना चाहते हैं तो सामर्थ का एकमात्र स्रोत परमेश्वर ही है। यदि आप परमेश्वर की बात नहीं जोड़ रहे हैं और बातों को जल्दी से करना चाहते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पाएंगे, परंतु आप अपनी शक्ति से उन बातों को करेंगे। Amen. पर वचन कहता है परमेश्वर उस कुएं के समान है जो कभी सूखता नहीं और वो सामर्थ का स्रोत है। आमीन। That is, one day a brother speaking to one brother, and he was falling into sin so many times and failed the Lord so many times, and he was guilty about that, and he wants to be free from that sin, but एक भाई के विषय में बांटना चाहता हूँ कि वह भाई एक भाई के पास जाकर वह बता रहे थे कि वो कई बार एक ही पाप में बार बार गिर रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर को दुखित किया और परमेश्वर को असफल किया है, और यह एक बोझ उनके मन में था। he was saying, brother, I will come to Jesus after I will overcome this sin. और वह भाई ऐसा मुझसे बता रहे थे कि वह कह रहे थे मैं जब इस पाप के ऊपर पूरी तरह से जय पालूंगा तब मैं यीशु मसीह के पास आऊं। Because he was guilty of his sin and he was shameful, and he was feeling like that, and he don't want to come to Jesus with that feeling. क्योंकि वह भाई अपने विषय में ऐसा सोचते थे कि वो उन्हें अपने किए का बहुत ही पछतावा था कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और यीशु मसीह के पास इस रीति से नहीं आना चाहते। So I said, brother, it is not like that. If you come to Jesus only, you will be saved from your sin. मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, यदि आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो वह आपके पापों से बचाएंगे। Because it says, I said to him in Matthew 1:21, it says he promised he will save his people from their sins. और जैसे मत्ती के अध्याय 1 के वचन 21 में परमेश्वर ने वायदा किया है कि उसका वह उद्धार अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। So many people are like that. They don't want to come to Jesus because of the guilty of their sin.
जैसे कई सारे लोग हैं जो अपने पाप के पछतावे के कारण इतना पछतावा महसूस करते हैं कि वो यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते, because they don't have a strong faith in the promises of God, in the love of God. क्योंकि इसका कारण है कि उन्हें परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, उसके प्रेम पर एक दृढ़ विश्वास नहीं है। In 1 John 1:9 it says, if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. और जैसे पहले यूहन्ना कहता है 1:9 में हम पढ़ते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, वो हमारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करेंगे। So the problem is not with the word of God, but our faith in the word of God. और जो समस्या है वो परमेश्वर के वचन में नहीं है, समस्या हमारे साथ है, हमारे विश्वास में है जो हम परमेश्वर के वचन पर करते हैं। Because God is the living God, and the Bible says that God is the living God and his word is the living and powerful. अब बाइबल कहते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वह जीवित परमेश्वर है और उसका जो वचन है वह जीवित और सामर्थी है। In James chapter 4 verse 8 it said, draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Which was brother? James chapter 4 verse 8. और याकूब के अध्याय 4 के वचन 8 में भी हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दूचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। So if I come near to God, then God will come near to me, and I can forgive, cleanse my sins in the blood of Christ, and he will save me from my sins. I can cleanse, he will purify my heart. और जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के निकट आएंगे तो वह भी हमारे निकट आएगा। तो जब मैं परमेश्वर के पास हम जाएंगे, अपने पापों को अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो वह हमें धोकर शुद्ध और साफ करेंगे, हमारे हृदय को वो पवित्र करेंगे। So in the story of prodigal son also, when the prodigal son came to his senses, he came near to his father. और जैसे हम उड़ाव पुत्र के उस कहानी के विषय में भी पढ़ते हैं कि जब उसे उसके किए का एहसास होता है, But then the father also come near to him, and both and father and son have fellowship again. और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो अपने किए का एहसास करने पर उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास लौटता है, उसका पिता भी उसके करीब आता है और वो दोनों पिता और वो जो उड़ाव पुत्र है वह एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। So it is also same with the heavenly Father and us also. If we come near to God, he will come near to us. और यह बिल्कुल वैसा ही है जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो वह हमारे निकट आता है। So we need to have wait patiently on the Lord to overcome sin, to receive His power, and so that we can overcome sin. तो हमें परमेश्वर का इंतजार करना है, जैसे हमने वचन में पढ़ा, परमेश्वर की बाट जोनी है पाप के ऊपर जय पाने के लिए कि वह हमारे जीवन में कार्य करेंगे, उनकी सामर्थ देंगे। Like that woman in Luke 18 persistently asking for justice. जैसे कि हम लूका के अध्याय 18 में उस विधवा स्त्री के विषय में पढ़ते हैं कि उसने उस न्याय से लगातार उसने विनती करते रहे उसका न्याय चुकाने के लिए। Jesus said in that the starting of the chapter, Luke 18 verse 10, Jesus said this parable so that you will not give up. और हम देखते हैं कि उस दृष्टांत की शुरुआत में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें यह बातें इसलिए कहता हूँ ताकि तुम हियाव ना छोड़ दो। In Hebrews 6 it says, imitate of those who through faith and patience inherit the promises. और इब्रानियों 6:6 में ऐसे वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा वह 6 नंबर Hebrews 6 chapter 6 verse 12. इब्रानियों 6 का 12वां वचन ऐसे कहता है कि तुम आलसी न हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। So the godly men inherit the promises of God through faith and patience. तो परमेश्वर के जो भक्ति में पुरुष रहे हैं और जो जन थे वो उन्होंने विश्वास और धीरज धरने के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पाया है। So it says Jesus will save his people from their sins. I have to imitate like the godly men. I have to keep my faith in that promise strongly, and I have to wait patiently on the Lord so that he will one day save me from my sin.
और जैसा कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है यीशु मसीह ने कि हमें वह पाप के ऊपर जय देंगे, तो मुझे उस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करना है अपने पूरे हृदय से, और फिर धीरज धरना है, परमेश्वर का इंतजार करना है कि वह हमारे जीवन में कार्य करेंगे। So I remember once Brother Zach saying, Lord, if it happened 10 years, I want victory over sin. और मैंने एक बार भाई जैक को यह कहते सुना कि उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर यदि यह 10 वर्ष भी मुझे लगेंगे, लेकिन मुझे जय चाहिए। We have to imitate like that godly man who inherit the promises of God with faith and patience. तो हमें भी उस भक्तिमय पुरुष के समान, परमेश्वर के जन के समान विश्वास करना और धीरज धरना है कि हम उन प्रतिज्ञाओं को पाएं। जैसे ब्रदर्स लोग ने शेयर किया कि हमें प्रभु के ऊपर प्रभु के लिए वेट करना चाहिए। Like how brother shared that we should wait upon the Lord. प्रभु का बात जोते रहना चाहिए। And we should always be waiting on the Lord. हाँ, तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं यशायाह अध्याय 40 में यहाँ पर लिखा, जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। How we see in Yeshaya chapter 30 verse 41 that those who continue to wait upon the Lord shall renew their strength. तो जैसे मसीह दौड़ में हमें जैसे आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ सामर्थ की बहुत जरूरत है। हम खुद के सामर्थ या ताकत से आगे इस दौड़ में नहीं दौड़ पाएंगे, हमें किसी का सामर्थ की जरूरत है जो प्रभु हमको देता है। So like we have to run in this Christian race, so we cannot do that running on our own strength. We need that strength from the Lord, and if that strength is provided by the Lord, then only we can run in this Christian race. कई बार हमारा फीलिंग्स अच्छा रहेगा अगर हम ज्यादा वचन सुन रहे कुछ कर रहे, तो कई बार हमारे फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड होके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी परिस्थिति आती है जब हम वो अपने आप को वो सिर पे नहीं देखते हैं, हम कई बार अपने आप को बहुत डिमोटिवेट करते हैं, नीचे हो जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। So many times it happens that our feelings will be good, and we'll when we are hearing word of the Lord often, and we'll feel good, and we'll be able to run. But sometimes it may happen so that we are not feeling that good about ourselves, and we are feeling very low. And in that case, तो ये वचन उसी के लिए लिखा है जो नया बल प्राप्त हर दिन करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है करेंगे नहीं, करते जाएंगे। मतलब वो एवरीडे का प्रोसेस है जो परमेश्वर हमको देते जाएगा, और हम बढ़ते जाएंगे। इसको जो प्रभु की बात जोता है उसे। So the word which is mentioned here is that this is the process of a daily thing, and it's not like only one day we have to receive strength. It is a continual process, and we have to renew our strength and wait upon the Lord daily. देखो, अच्छे समय में हम प्रभु के लिए वेट करेंगे तो ये बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, कुछ भी चीज हमारे हिसाब से नहीं होता, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, और कहीं से भी कोई भी मदद नहीं, कुछ नहीं, और तब वो टाइम पे हमारा वेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। So it may so happen that when the time is good, it is easy for us to wait upon the Lord. But sometimes if the condition and if the circumstances are not so good, and we are sometimes demotivated, then that time it is difficult to wait upon the Lord. हेलो, हाँ ब्रदर, आवाज आ रहा है आपका? हाँ, ओके। तो हम पुराने नियम में भी देखते हैं, परमेश्वर ने जब इजराइलियों को फिरौन के हाथों से छुड़ाया था, we can see in the Old Testament also that the time when the Lord had freed the people of Israel from the hands of Egyptians. बड़े उद्देश्य के साथ प्रभु ने उनको छुड़ाया था। प्रभु का एक बड़ा योजना था उसके पीछे, and there was a great purpose behind that freeing, and it was a part of Lord's plan. लेकिन जब वो लोग वहां से निकल रहे थे और फिरौन को जब उन्होंने अपने पीछे आते हुए देखा, and the time when they were escaping from that place, and when they saw the King Pharaoh behind them, तो उनको ऐसा लगा कि परमेश्वर ने हमें इधर इसलिए लाया कि वो हमको यह जंगल में मार डालेगा। Then that time they thought that the reason why God has brought them till this place was that He wanted to
kill them in this forest. तो प्रभु ने खाली वहां तक ही लाने के लिए उनको प्रभु ने वहां से छुड़ाया था, ऐसे वो सोच रहे थे. And they were thinking that the Lord wanted to come, the Lord wanted them to reach only till that place. That's why the Lord had freed them. कई बार मसीहों के हम भी ऐसी सोच सकते हैं कि अरे मेरा कॉलिंग खाली इधर ही तक था, या मैं इधर ही तक रह सकता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता. लेकिन प्रभु का योजना ऐसा नहीं है. प्रभु चाहता है हम हर दिन यीशु जैसा बनते जाएं. So we may also think so many times that that my calling was to reach till this place only, and I cannot go further. But if you think like that, then we will start to backslide. हाँ, और प्रभु चाहता है कि हमको वो और मसीह जैसा हर दिन बनाते जाए. But what Lord wants is that daily He wants us to be more like Jesus. तो वहां पर मूसा उनसे कहता है कि मत कुड़कुड़ाओ और देखो प्रभु तुम्हारे लिए क्या करने वाला है. That time the Lord tells them that do not grumble. Sorry, Moses tells them that don't grumble and just wait and see what God can do for you. तो जब हम अपने जीवन में ऐसे परीक्षा और तकलीफ के समय आते, एक चीज हम बहुत जल्दी करते हैं, वो है कुड़कुड़ाना, जहाँ पर हम ग्रम्बल करते हैं, हर चीज का बुराई करना चाहते हैं. तो यहाँ पर मूसा वही कहता है कि तुम ये मत करो और सिर्फ प्रभु के लिए रुको. So when we face many troubles and problems in our lives, the first thing that we do is mostly we grumble and we complain about that. But God tells that don't do like that. You should wait. तो उसके 14 वचन में लिखा है कि यहोवा तुम्हारे लिए आप लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो. And in the 14th verse it says, कहाँ का 14 brother, किस वर्ष का? निर्गमन अध्याय 14 का 14. Deuteronomy, Exodus, in Exodus chapter 14 verse 14, it is mentioned that you need only to stand still and see what the Lord can do. तो हमें सिर्फ चुपचाप रहना है, प्रभु का वेट करना है. प्रभु अपने समय पर हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा. और जैसे सबोपदेशक में लिखा, उसका समय बहुत ब्यूटीफुल है, जिसमें उसने हमारे लिए सब एक अच्छा काम सोचा है. So in his time God will do wonderful things for us, as it is mentioned in Ecclesiastes, the book of Ecclesiastes, that God makes everything beautiful in his time. तो प्रभु हम सबको सहायता करे कि हमारे अंदर वो धीरज आए कि हर दिन हम प्रभु के लिए वेट कर सके और प्रभु की बात हम जोते रहे, उसके और नजदीक हम आ सके. आमीन. So may Lord help us that we may have that perseverance, that we can wait upon the Lord daily and renew our strength. We praise God for that. I would just like to share from Proverbs chapter 8 and verse 34, where it says, "Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at my doorposts. For he who finds me finds life and obtains favor from the Lord." So, Proverbs 8, verse 34 and 35. Which verse, sister? Proverbs 8, 34 and 35. तो मैं नीति वचन के 8वें अध्याय के 34 और 35 वचन से बांटना चाहती हूँ. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता. क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है. So, like we heard today, such an encouraging word about the need to wait and have fellowship with the Lord. तो जैसा कि हमने आज सुना, कितना जो चुनौती भरा वचन था कि कितना जरूरत है कि परमेश्वर के ऊपर अपने का इंतजार करना और उससे अपनी शक्ति को फिर से नया करना. It says watching daily at my gates. यहाँ ऐसा लिखा है कि वह मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता है. So every day, it's a daily thing. तो यह जो
काम है ये है प्रतिदिन का है, not once in a lifetime work, but it's daily. We have to have wait at the Lord's gate. I always imagine, like, I am going to the gate of a king and waiting at his gate to hear from him. तो यह एक दिन का या पूरी जीवन भर में एक दिन का काम नहीं है, यह प्रतिदिन का काम है। और मैं इस बात दृश्य की कल्पना इस तरीके से करती हूँ कि मैं एक राजा के द्वार पर खड़े होकर उसकी राह देख रही हूँ। So it says that blessed is the man. That means blessed means you obtain favor from him. तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य। तो धन्य होने का मतलब है कि आपको उससे अपना फेवर मिलेगा। Yeah, I remember once when I was discouraged and disappointed with some things in my life, and the Lord reminded me of Isaiah chapter 42 and verse 1, where it says, "Behold my servant whom I uphold, my chosen one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations." तो मुझे ऐसा स्मरण आता है एक बात के विषय में, जब मैं बहुत निराश थी और अपने जीवन में हारा हुआ महसूस कर रही थी, उस समय पे परमेश्वर ने मुझे यह वचन से बात किया, यशाया के 42 अध्याय के पहले वचन से, "मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा।" And in verse 4 it says, "He will not be disheartened or crushed until he has established justice in the earth." और वहां पर चौथे वचन में ऐसा लिखा है, "वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे।" So the Lord was telling me that this is speaking about Jesus, that Jesus would never be disheartened or crushed because the Spirit of the Lord was upon him. तो यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है कि यीशु मसीह कभी भी थकेंगे नहीं और न अपना हियाव छोड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। Because the Spirit of the Lord is upon him. क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है वह उनके ऊपर है। So the Lord reminded me that the same Spirit, the Holy Spirit, has been poured into my heart and I need not be discouraged. तो परमेश्वर ने मुझे इस बात का स्मरण कराया कि वही आत्मा, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, वह मेरे हृदय में भी है, इसलिए मुझे थकित होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। And Romans 15:13 says that he causes us to abound in hope by the power of the Holy Spirit. रोमियो के 15 अध्याय के 13वें वचन में ऐसा लिखा है कि 1 मिनट, जो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। Yeah, so you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, तो इस आशा में हम हमेशा बढ़ते जाएंगे। So when we have the power of the Holy Spirit, we will always abound in hope. तो जब हमारे पास इस पवित्र आत्मा का सामर्थ होगा, तब हम हमेशा इस आशा में बढ़ते जाएंगे। Yeah, praise the Lord for what I heard today. परमेश्वर की स्तुति हो जो भी मैंने आज सुना।